Assalamualaikum everyone. I'm just connecting with my friend. Okay. Give her a minute to join. Okay. Let's bring her in now. I think we're all set. I might have to reconnect because I can't see her coming in. So just give me a minute, everyone. Oh, she's finally here. Assalamualaikum. Walaikum assalam. क्या हाल है ब्रा? बिल्कुल ठीक. Sorry to keep you waiting. I thought you कोई said बात नहीं. seeing you in 15, you're going to see each other in 15 minutes. So, अच्छा, confusion. ऊपर नीचे हो गया टाइम. हाँ. Anyway, how are you doing? I'm good. I'm good. Ibra, let's dive in. Why did you pick this topic? Body keeps a score. It was an interesting topic for me, Mm-hmm. and I've been actually researching into it. Some of my patterns, I'm into therapy, and I'm searching some of my patterns and what they are. मैं Okay. थोड़ी geeky भी हूँ, so I read some articles and published work and Right. all of that. So this is something of actually exploring generational trauma and all of that. Right. So how does it manifest in ourselves things. So yeah, इस वजह से आज ये topic choose किया. ठीक है. Um, yeah. Yeah. So fill me in. You said you were reading about generational trauma and stuff. So how is this all linked? Everything is linked. Yeah, I actually read a very interesting. I actually heard this very interesting story about somebody who had allergy from coffee, अच्छा. and how it came into you know. तो वो कैसे कॉफी की हुई. Then he found out, like जब research किया, like was it always like that? The mother also had it. No, she didn't have but she didn't Okay. really liked it, but she didn't have really had. फिर अच्छा. grandfather के पास गए, उनसे पूछा जब उनकी life story की. He actually he was, and interestingly speaking, the grandfather was actually mugged when he अच्छा. was when he was in the university. So that time he was not married. He was अच्छा. single. He has no contact with the wife later on, which he married, jiske saath bacche hue, and then all of that. So he हाँ. was a young boy.
The grandfather was a young boy in university, and at that time he used to go to a park to study. Acha. Yeah. And there in the park, he was mugged one day. And what he remembered distinctively from because the mugger had the face, so like uska face mask tha. What he Okay. remembered distinctively was the smell of coffee. Coffee? Coffee, yes, the smell of Okay. coffee. Okay. The mother had drunk coffee or whatever, that he had a Okay. distinctly, he could remember, he could, smell the coffee smell on him. And Okay. that he Okay. remembered. And he says that from that day on, he never drank. He got so traumatized by the experience that he never drank coffee from Ah, those days onward. interesting. Acha. So he then later on he met his वो wife. connection बन गया ना trauma के साथ कि coffee की smell is not safe. Yeah, हाँ. similarly, not just that, like somebody who's bitten down by a snake, yeah, fear of snake क्यों develop होता है? Somebody in your ancestrals, like bitten down by, मैं एक story पढ़ी थी कि grandfather, again, similarly, grandfather ही था इस case में भी, he was bitten down by the very poisonous snake, और बहुत, he got really sick by it, and he suffered a couple of days, actually. He lived through it, but he suffered a lot, 3-4 दिन का बुखार and whatever. And the child had a very, like, after 2 generations, बहुत severe phobia of snakes, right? Like literally, बहुत severe phobia. That's how phobias develop. Um, I remembered, मैंने एक article, अच्छा again मैं थोड़ी geeky सी हूँ तो मैं books और articles पढ़ती. एक article when I was pregnant with my child, I read the article about people who actually like जो pregnancy में women खाना खाती हैं, वो बच्चों को lifelong उनकी favorite चीजें होती हैं, lifelong. अच्छा. And with my 3 kids, I saw that pattern. Like, जो मैंने उनकी pregnancy में खाया था, एक तो वो craving भी होती है ना, I never liked apples. Never liked apples. Right? तो मेरी जो third pregnancy थी with my son, I used to crave apples. तो मैंने बहुत apples खाए भी हैं. अच्छा. Apple is the favorite food, his favorite food. मतलब मैं उसको कुछ भी ना दूं ना, apple खिला दूं, उसका पेट भर जाता है. Ah, interesting. Yeah, so a lot of things. And abhi I was reading the other day, I was reading an article, like 10-year-old Chinese American bacha, he actually studied, butterflies and caterpillars, Okay. Okay. And वो कहते memories भी transfer होती हैं. So epigenetic is actually कि सिर्फ trauma नहीं होता, आपकी memories, आपकी likes, dislikes, even skills. Skills are also transferred. अगर आपकी generation में कोई, for example, farmers हैं, and आप हमेशा से urban उसमें, आपके parents, आपके grandparents, आप खुद urban उसमें रहे, urban culture में रहे हो, nothing to do with farming. But just because आपके ancestor में कोई रहा है, it's easy to pick that skill up. If you try it down, you would be like, you are natural into it. And why? Because you have that ancestral आपका skill भी transfer होता है. Wood carving, artisans, even alcoholism, addiction, through genetics transfer होती है. ठीक है. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टडीज ना, हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि जो एकेडमिक्स में जब स्टडीज होती हैं, जो आर्टिकल्स मोस्टली आर वेस्टर्न बेस्ड. But जो I was more interested into what is happening in the east side, एशिया में क्या है, साउथ एशिया में क्या है, हमारा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है. एक और इंटरेस्टिंग लिंक में एक आर्टिकल का रेफरेंस दूंगी, पर उससे पहले मुझे याद आया एक चीज, तो मैं जिक्र कर दूं. When my kids were born, सबकी वैक्सीनेशन, अब I live in the Netherlands, right? So when my kids were born, उनकी जो वैक्सीनेशन होती थी, वैक्सीनेशन देने से पहले कि उनको कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी, they asked, आप कहाँ पैदा हुए, आपके पेरेंट कहाँ पैदा हुए, like मदर और फादर दोनों का वो लेते हैं, ऑल दैट जेनेटिक लेकर उससे अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन भी बच्चों को देते हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंग. हाँ. And even now, बल्कि मैं अभी यहाँ पे एक research conduct कर रहे हैं about the kind of sports facility, that should be available to the. उसका भी linked है towards which country you're coming from, what's your ethnicity, not just color या race या उसके ऊपर, लेकिन आपका genetic makeup क्या है, where your body stores the fat. एक Indian researcher हैं, बैंगलोर में उन्होंने research conduct की, उन्होंने पता नहीं हजारों बच्चे, I think, उन्होंने रिसर्च की when the child is born, right? अब हम we have a tendency, आपको पता है डायबिटिक हम होते हैं, हमारी we have a tendency कि we store fat, South Asians we store fat in the belly,
Yeah. right? Delhi area. Mm. अब and he said कि we later develop eating habits के because हम वो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा घी वाली चीजें और हमारी चीजें और ऐसी हैं लेट कि खाना है, हाँ हाँ. खाते हैं हाँ look हाँ. guess what हाँ. he studied उसने बच्चे जो पैदा होते थे ना उनकी उन्होंने पिक्चर्स ली the ठीक है. child that is born like first day second day first जब ठीक वो है. mother पेट फीड पे है ठीक है ठीक है. उन्होंने पिक्चर्स ली and he compared with the babies born in the west यूरोप में ठीक है. उन्होंने वो पिक्चर्स साइड बाय साइड रखी हम्म. मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बताऊंगी तुम्हारे भी बच्चे हुए हैं मेरे भी बच्चे नेफ्यू नीसेस वी हैव सीन देम रेज देम Yeah. बच्चा पैदा होता है पेट ब्लोटेड होता है बच्चे का हम्म. हमारे बच्चों के पेट साउथ एशियंस के पेट ब्लोटेड वो इंडिया का था बैंगलोर का स्पेसिफिकली बट हमारा इवन इन पाकिस्तान आई रिमेंबर माय नेफ्यूज माय नीसेस हमारे सबके बच्चों के पेट यू नो ब्लोटेड होते हैं फुल हाँ. फुल होते हैं और अगर नॉर्मल यूरोपियन आई रिमेंबर बच्चे हॉस्पिटल में कभी आप जाओ उनकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर की है देयर नॉट उनकी कोई टमी सब निकला हुआ नहीं होता हम्म. एंड ही सेड ही उसने रिलेट की ये चीज कि देखो इंडिया में 300 years you know this area was ruled by the British हम्म. and it's no surprise you know जो कुछ हुआ 32 or more I think famine were recorded in different places millions of people starving हमारा genetic makeup ही ऐसा बन गया कि we store fat in the belly right Yeah. आप imagine करो कि कितना वो genetic makeup like हम बात करते हैं जब generational trauma की तो हम जनरेशन नस्ल 300 years आपको मैं विश मुझे आपको कॉमन पीपल को हमें ज्यादा से ज्यादा कितना याद है हमें लाइक इंसेस्ट्रल नॉलेज की बात कर रही हूँ द पीपल वी हैव मेट या हमें कोई रिकलेक्शन है अबाउट यू नो वी हैव हर्ड स्टोरीज ज्यादा से ज्यादातर की ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लोग मिले हुए हैं वेरी लकी दे हैव द यू नो दे मेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लाइक तीसरी चौथी पुश्त में वेरी फ्यू लेकिन द ट्रॉमा और जो हमारी बॉडी जेनेटिक मेकअप है इट इज इंस्पायर्ड नॉट जस्ट बाय दैट पार्ट यू नो everything that happened even before the people that we don't know the names of we have no recollection of it the famine the suffering they went through their likes dislikes their skills उनका आंखों का कलर उनका you know all of that हमारे डीएनए में वो चीजें हमारे जीन्स में we carry it we transfer it you know after it was very interesting fact कि why when we say healing is difficult we go back to we go back to our old patterns why is that I mean longitudinal studies mushkil you won't find any longitudinal studies on this topic as in I'm talking about healing right why longitudinal सोचो अगर पुश्तों पर ये जनरेशनल ट्रॉमा पुश्तों पे मुश्तमिल है बिल्कुल ऐसे मतलब I'm saying in a very difficult Urdu but generation after generation after generation after generation after generation I'm not just saying trauma वो easy हो जाता है but whatever it is your genetic makeup is from everything you know from the beginning from the generations 7 पुश्ते में भी more than that तो आपकी कोई रिकलेक्शन नहीं है तो फिर हीलिंग इसी वजह से डिफिकल्ट है ना हीलिंग ऑल्सो भी हमें विरासत में देनी पड़ेगी हीलिंग हमें इनहेरिटेंस में लिखवानी पड़ेगी and how can we if we expect to change stuff we have to be the change them ourselves and it is not easy मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ like मैंने पहले आपके साथ मेंशन किया नॉट पब्लिकली बट इट्स डिफिकल्ट आई वाज वेरी व्हेन आई केम फर्स्ट टू द नेदरलैंड्स तो मुझे बड़ा समझ में ना बड़ा इंस्पायर करता था कि लोग कितने आराम से सन बेदिंग करते हैं यार घंटों बैठ के सन बेदिंग करते हैं हाउ कैन दे डू इट लाइक इट वाज लाइक हाउ कैन दे डू इट मतलब मैंने ट्राई किया बैठने की तो उस वक्त अजीबो जी अच्छा यार मैं फ्रिज से खाना निकाल देती हूँ मीट निकाल देती हूँ खाना बनाने के लिए मतलब मैं बैठ ही नहीं सकती थी कभी क्या ख्याल आ रहे कभी क्या it's still a struggle even now I've been working on myself and over productivity and I was thinking कि क्या उसका है हमारी worth women especially South Asian women worth is through productivity what you bring to the table what you're doing as a mother as well with responsibilities
what you bring to the table. हमारी words ही उससे की जाती है. Letting go of doing and sitting is not easy. There's so many things in way back that we have to change in order to, to break that pattern of being. मैं वो सोचती होती थी, still recall that अभी भी, but कि यार इनको काम नहीं होते. They live the same life, मतलब उनकी भी life इतनी hectic है, world over यही pattern है. They live with the same, उस तरह बच्चे हैं, घर है, काम है, how are they able to sit for hours in the sun and bathe? And it is requirement. Like मुझे तो डॉक्टर ने कहा कि आप बैठें क्योंकि विटामिन डी नहीं बन रहा बॉडी में. And taking supplement is not helping me. Body needs to make it itself. The doctor has recommended me to sit in the sun and soak in the sun. Right. Knowing that it's difficult, so kya reason hai? There may be multiple reasons to it. Maybe somewhere into. And I was thinking, I never actually seen my mother relax, हालांकि never seen my mother relax and sit in the sun. और वो हालांकि देखो my grandparents, I still remember, उनको भी ना especially सर्दियों में वो धूप में उनका विरांडा होता था, उसमें वो they used to sit like noon पे, वो क्या कहते हैं word होता है पंजाबी, कलूला. They used to take a nap in the, और सर्दियों में तो especially in the sun. गर्मियों में तो it was inside, but सर्दियों में in the sun. My grandparents were able to do it. My mother didn't. I didn't see my mother doing it, so मैं भी नहीं कर सकती. There must be some reason to it, and it's not something that was never done. Like that sunbathing was never done. It was done in our culture as well. Yeah. But I'm still working on it. What are the reasons behind it? And maybe it's just not your thing, maybe not that much, but Ibra, ये जो आपका topic है, the body keeps score, there's a book also on it, and I bought this book last year और मैंने पढ़नी शुरू की और I couldn't read it. I think मुझे अब तो याद भी नहीं मैंने कितने, I think 100 pages पढ़े होंगे सिर्फ, और मैंने पढ़ के पहले शुरू में रख दी, मैंने कहा I can't read it, I'm getting overwhelmed, ठीक है. और फिर मैंने कुछ देर ब्रेक लेके I took it out again. Right, and I started reading it again and I couldn't, so I closed it. I've not gone back to it yet and I just put it in the drawer. And the reason, अब मुझे आज तक नहीं पता reason क्या है, क्योंकि ऐसा जब मैं पढ़ रही थी कुछ मेरे लिए surface पे नहीं आता, आपकी awareness में आ जाता है कि यार ये trigger कुछ कर रहा है या इसमें, but I just realized that आपका the little bit I got, and obviously the topic itself talks for it, is a body keeps the score. कि हमें लगता है कि जब कोई हमें कुछ बुरा कह रहा है और हमने उसको इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं हो रहा, पर एक्चुअली आपकी बॉडी उसको रजिस्टर एज अ नेगेटिव फीलिंग, एज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस आपकी बॉडी में स्टोर कर रही है, एंड यू नॉट वॉइसिंग इट, यू काइंड ऑफ सप्रेसिंग, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ. It is sitting in your body, and I truly believe, rightly or wrongly, I don't know, but I do believe that every disease in this world is created because of us rejecting a part of us. I think जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे वो कुछ भी है, is because of suppressing ourselves. कुछ तो हमारी अवेयरनेस में आ रहा है और कुछ तो जिस तरह आप कह रहे हो एंसेस्ट्रल हमें मिल गया ना, हमें तो पता ही नहीं हमारी विरासतों में हमें क्या मिल गया है. सम थिंग्स आर वेरी लाइक एविडेंट कि अच्छा जी फिजिकल ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा है, कल्चरल ट्रॉमास क्या है, जिन चीज की अवेयरनेस है वो तो we're all working towards healing ourselves, right? That's why we are in this space where we are at. But there are some things we just don't know. We just have no, we're clueless कि हमारे ancestral bloodline से हमें क्या क्या मिला होगा जब मिल चुका है. Yeah, not just ancestral. आपकी बात मैं भी ठीक है, सब तो नहीं, लेकिन mostly तो अब scientists कहते हैं like autoimmune diseases, a lot of autoimmune diseases, even the leading cause of even cancer is your is not what's actually happening, or even genetics भी नहीं, आपका अपना आप the things that you're bearing and keeping inside you. जब हम healing की बात करते हैं ना, the healing is not only, मुझे आपकी बात से याद आया what you were saying, healing is not just changing your patterns. जो already अंदर चीज होगी ना, release भी है. लोग people focus more on on the fact that they need to change things to heal. वो patterns, yes, this is very important कि आप unhealthy patterns में मत रहें, you have to change them.
Yeah. But it's also important जो already है वो release भी तो होए, वरना वो gas अंदर ही, it stays inside, and it, shows up as something else, as a What do disease you or anything. explain for the audience? What do you mean by release? Release mean कि जो भी आपने एक चीज suppress की है हमेशा, the word suppression actually made me think of this thing. You've suppressed your anger, you've suppressed sadness, you suppressed whatever at that moment you were not able to, whatever your true feelings. देखो feelings ये भी होता है कि एक होती है primary feelings, एक होती है secondary feelings, एक होती है हम बहुत दफा just to function in the world, uh, we are not showing the true feelings. जो असल में हमारी feelings होती हैं हम वो नहीं कर रहे होते, हम we are putting up a face, most of Yeah. us, all of us Yeah, are going through it, absolutely. हम करना पड़ता है कभी जिंदगी, to function in the world. We sometimes have to do it, and not sometimes, actually most of the time it is a fake face that we are putting into the world. That हो भी रहता है, we're smiling it off, Mm-hmm. अगर we do not like somebody, still we have to talk to them. Somebody gives you an off feeling, even then you have to be polite to them, uh, we have to be functional in that way. But by suppression I mean you keeping that up all the time वो एक जैसा गैस का बटन नहीं अंदर भरती जाती है, वो जब आप फर्मेंटेशन कर रहे हो तो वो भरती जाती है, जब वो टू मच हो जाता है तो एक्सप्लोजन होगा. Mm-hmm. The release I mean is release it as well. पहले तो awareness होनी चाहिए ना कि ये सब कुछ हो रहा है. Mostly we live in a society where we are not aware of we are made to function always for the society, for people pleasing, for people, for the people and how things work. And अपना true identity और जो uniqueness और जो भी feelings उसको suppress ही कर रहे होते हैं, और we do not show it up. अगर हम aware भी नहीं हैं उन चीजों के बारे में, first of all तो awareness ही नहीं है, right? हम aware नहीं है, हमें पता नहीं है कि यार these things are actually hurting us. Right? Thankfully, we've started speaking about it. Our generation has started speaking about it. Our generation has started talking about these things. मुझे अली I गलफी का think I think they're talking अब मेरी जो थोड़ा प्रॉब्लम है ना मुझे है कि there is too much awareness, there is too much information, there is too much knowledge. But वही वाली जो आपकी बात है ना, awareness is one step. You have to heal, and heal means you have to work on it, you have to process it, you have to release it. और ये लोग बहुत लोग नहीं करते, they skip the part. वो कहते हैं अच्छा ये लिखा है, हाँ this validates me. Validation is not healing, validation is not process, validation is just one part of the layer. You have to go deeper in to get to the root, and that's where the release जो आप release की बात करें. और इब्रा आप जो ये जो बात कर रही हो, मुझे ना सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि देखो जब हम छोटे थे, ठीक है, यू एंड मी बीइंग अ गर्ल, चलो हम लड़की की बात कर लेते हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है हमारी कोई आवाज नहीं है, बेटे बेटा चुप कर जाओ, लड़कियां नहीं बोलती हैं, लड़कियां ऐसे नहीं बात करती, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, लड़कियां ऊंचा नहीं बोलती, लड़कियां हंसती नहीं है. तो हमें तो बचपन से सिखा दिया जाता है नॉट बी योरसेल्फ, right? not And just seek your father's validation, your dada's your nana's validation, your male figure जो आपके घर के, उनकी आपने validation seek करनी है, ठीक है ना? And that's why for me when I stood up for myself and I said I don't want to live in this marriage, uh there was सपोर्ट तो थी, लेकिन वो जो होता है ना कि आपको इमोशनली समझ आ रही है मैं क्या कर रही हूँ, उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी. you know that there was not that respect that I people had to do because it was my life. I had that choice कि मेरी मर्जी है जो मैंने करना है. बट वो जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि इस बात में वजन है, एक औरत को हक है अपने लिए खड़े होने का. अब मैं तो इस्लाम को भी नहीं ला रही इसमें, क्योंकि हम बॉडी कीपर स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो है ही नहीं. एंड देन व्हेन आई लुक बैक मैं कहती हूँ ये and all my healing in these 7 years has been, why did I do what I did? Why did I lower my head in a marriage and said, बस ये मेरे husband है, मेरे नाउजुबिल्लाह मुजाजी खुदा जो कह देते हैं, अल्लाह माफी दे, ये भी कहाँ से आ गया, आई डोंट नो, हमारे कल्चर में. और बस इनके सामने सर झुका के मैंने जिंदगी जीनी, इनके सामने ऑफ भी नहीं करना है, पहले माँ बाप के सामने नहीं करना था, अब इनके सामने नहीं करना है. And then you can't do so many years of your life, right, because of that. And it's just really sad. I'm a cycle breaker and I'm very proud of that, alhamdulillah, allah ka karam hai. But I'm just deeply saddened, not to like uh
not spread positivity, but just being really real, is that in Pakistan, in the times we are living in, it's just become a talk culture. इतनी अवेयरनेस है, सब कुछ पता है हमें, लाइक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमें ऐसे लगता है सो मच इज हैपनिंग पाकिस्तान में, ये हो रहा है, सब कुछ आ गया है, स्कूल्स में थेरेपिस्ट आ गए हैं, थेरेपी प्रमोट की जाती है, मेंटल हेल्थ की बात की जाती है, नेम अ थिंग, पाकिस्तान इज एज एडवांस एज द बेस्ट, राइट, वी हैव एवरीथिंग, ठीक है। बट व्हेन आई सिट इन पीपल, people will talk, यार मेरा ये मसला है, whether it's with in-laws, whether it's with husband, whether it's about their identity, they talk. Now you say I'm sorry, और जो आपने थोड़े से चार लफ्ज बोल के इसको वैलिडेट कर दिया, आपने मुझे वैलिडेट कर दिया, वो घर जाते हैं और वो वही पैटर्न रिपीट करते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि नॉलेज प्लस अवेयरनेस, यहाँ बात नहीं रुकती है, नीचे जाना है, गहराई तक जाना है। वो वाली बात है ना कि वो जब आपको चोट लगी, आपने ऊपर से बस एक टिश्यू रख दिया चोट के ऊपर, कट के ऊपर, पर आपने चोट को खोलना है, उसको सही तरह, मतलब मरहम लगाना है, उसको सही तरह हील करना है। People are not understanding that they need to go there. Either they're still reluctant to go there, or they're just, I don't know. I really don't know, but this is what I see in my culture. Um, I've actually thought about it a lot. Why is this? Yeah. Because देखो सरिश हमारी sorry मैं wish again I'm using सरिश मैं wish हमारे culture में ना unfortunately awareness है, there's talk of therapy, but still there's a lot of judgment. Yeah. There's a lot, औरत बात पे कितना लोग जज करते हैं, Hmm. और हमारी सोसाइटी में needed है, the औरत बात is needed. Yeah. I am not going to ask for the number of cases, any kind of cases, चाहे वो domestic violence के हो, चाहे वो murder तक की बात चली जाती है. I'm not going to talk about those issues. They are there. Orange March is needed. वो कहते हैं ना conspiracy theories. I'm not saying they're not there. They're Yeah. there. Yeah. Because Yeah. अभी जब कुछ दुनिया में हो रहा है, they are there. बिल्कुल. But ऐसा भी नहीं है कि बाकी चीजें नहीं है. So there is always judgment. Even though there is a way. वो है अली गुलपीर का मुझे वो song है, चुप औरत अच्छी बोलने वाली गंदी. गंदी. Yeah. Yeah. Exactly. So it's both ways, yeah. Conflict. लोगों को खुद भी नहीं समझ आ रहा. Even they would, shine towards it, lean towards it कि यार शायद इस बात में वजन है, ये जो कह रही है वो ठीक कह रही है. But वो इतनी judgment सुन के हमारा natural instinct कंडीशनिंग है कि होगी ना, हमारी कंडीशनिंग है, हमारी हमारी conditioning है. वायरिंग है. Exactly. हमें हजम करना भी मुश्किल लगता है. Acceptance is difficult for us. हाँ. Awareness है. हाँ. There's so many cases every day they are arising. हमें पता है कि औरतें पाकिस्तान में they do not feel safe, but still even if a woman comes and talk about it, औरतें, women themselves would be talking against that कि ऐसा तो औरत नहीं ही है, औरत की सबसे ऐसा बड़ी तो नहीं है. दुश्मन है. It's हाँ. not happening because accept करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारा जो healing part है, देखो मैंने as I mentioned कि हम जब healing की बात करते हैं, changing patterns की बात करते हैं, then there's you have to accept a lot of things and it has to be uncomfortable. You have to sit with that uncomfortable feeling as well. किसी ने मुझे बड़ी अच्छी एक मैंने पढ़ रही थी, किसी ने जिक्र किया था, ignorance is not lack of knowledge. It is the choice to be comfortable. Yeah. Knowledge है the choosing to be comfortable, choosing to not accept what's happening in the society, choosing not to change your ways, I think it's choosing me. I think it's more. देखो इब्रा, देखो, let's talk choice about आ just जाती है. women. और मर्दों की तरफ नहीं जाते, हम औरत की बात करते हैं. एक औरत है, देखो, I know so many friends, ठीक है ना, जिनके शोहरों ने उनको पीटा है, मारा है in the past. वो कहती पास्ट में था, अब 10 साल हो गए नहीं मारे, but they say they still don't feel safe and they are scared कि अब पे कभी भी हो सकता है, right? Again, तो body keeps its score. वो It's और वो there. फिर, हाँ, और वो बात उनकी, मतलब माइंडसेट देखो ना, वो ये कहते हैं कि यार अब नहीं कर रहा, ठीक है ना, अब नहीं कर रहा, तो इट्स ओके. माय मॉम वेंट थ्रू इट, ठीक है, और माय मासी वेंट थ्रू इट, और somebody वेंट थ्रू इट इन द फैमिली, और ऐसे ही चल रहा है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पिटी एंड विक्टिम माइंडसेट, फाइनेंशियली कैसे होगा, मेरे बच्चों के लिए कैसे होगा, सो द क्वेश्चंस अराउंड योर ओन वर्थ, ठीक है ना. और मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि देखिए हम वेस्ट नहीं है, ठीक है ना, हम मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है ना. तो अल्लाह तो कुरान में खुद ही आपको
I've forgotten the name of the ayah, but where Allah is promising to take care of you when you divorce, He will take care of your kids. He swears upon it. But सूरह but निसा these में women, these women, they don't, ठीक है ना? And then there are women who say, who do we lean on to? अगर हम तलाक लेना भी चाहते हैं, हमारे वालिद साहब हमें वापस नहीं आने देंगे, हमारे भाई हमें वापस नहीं, हम बच्चों को निकाल के कहाँ लेकर जाएं, सो वो बिल्कुल ही आपने एक औरत को इतना बॉक्स कर दिया है, उसको इतना मजबूर कर दिया है कि you don't want, I think in Pakistan, because of patriarchal culture, you don't want to see an empowered woman because you can't control an empowered woman. And in our culture, you want to control, you want to like suppress her. And हाँ बेटा, माई भी कहती कोई बात नहीं बेटा, मारता है तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए रह लो, कोई बात नहीं, रुक जाएगा, 10 साल में ठीक हो जाएगा, 20 साल में, 10-20 साल का एक औरत बोझ ले, डैमेज ले अपनी सेल्फ स्टीम पर, और वो ठीक हो जाएगा। और जब वो ठीक हो जाए सब कहेंगे हाँ देखो यार, डिडंट इट टर्न अराउंड? एंड वी टॉक अबाउट इट विद ऑनर, वी प्राइड ऑन द सेल्फ सैक्रिफाइसेस, जिसमें हमने अपनी इज्जत ही गवा दी। महविश इजी है ना औरत को अपना स्टेटस वो बनाना, इज्जत का सिंबल बनाना, कितना आसान है टू वर्क टू चेंज वेज टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर women आर प्रोटेक्टेड व्हेन देयर इज अ सोसाइटी व्हेन women कैन गो आउट, मैं वेस्ट में देखती हूँ women do not, कितनी फ्रीडम है, बट देयर इज अ सिस्टम, द होल सिस्टम, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, देयर इज नो जजमेंट ऑन पीपल अराउंड, हर तरह का फ्रीडम देयर इज। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट इट कि इस्लाम में इस तरीके से है, और हैव फेथ इन अल्लाह, ये तो तवक्कुल कह रहा है, आपका तवक्कुल वीक है, कहना बहुत आसान है तवक्कुल वीक है, बट क्रिएट दैट सिस्टम करना कि वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब आप फाकी, जब औरत एक फाकी, उसे पता है कि सिर्फ औरत को देखो अपना दर्द फिर बर्दाश्त होता है, बच्चों का नहीं होता, औलाद नहीं होता, जब उसको पता, एंड देन शी स्टेप आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्या वो सेफ है? वो अकेली औरत पाकिस्तान में जितनी हरास होती है, उसको पता है कि वो अगर शोहर से मार खा के बच जाएगी, बाहर जाएगी, उसे वहां कोई हरास करेगा, कोई हरास कितना दिन कर देगा, मार छोड़ेगा। लाइक डू यू थिंक कि वो कैसे स्टेप ले? भाई नहीं करते, फैमिलीज नहीं सपोर्ट करती, बाप नहीं खड़े होते साथ में, वो सिस्टम नहीं होता, एंड इट इज अ फाइनेंशियल बर्डन। अ वुमन हु इज नॉट इंडिपेंडेंट and who has kids as well, becomes a financial burden, and it does destroys families. देखो ये भी practical बात है। बिल्कुल, absolutely, I 100% agree with and eventually we have to talk about कि हम लोग इसको इग्नोर करते रहेंगे, लेकिन अब इवन इस्लामाबाद में कल मैं कोई रील देख रही थी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज इट बिकॉज मैंने कोई स्टडी नहीं देखी, इस्लामाबाद में कहते हैं कि पता नहीं एक दिन में 30 डिवोर्सेस हो रही हैं। अच्छा। एक दिन में 30 डिवोर्सेस, या तो दैट्स क्वाइट अ नंबर, लार्ज नंबर। और वाकई में मैं जब थी वहां पे, लॉट ऑफ पीपल, लाइक ऐसे तो नहीं था ना, लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आर गेटिंग डिवोर्स, ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ वो नंबर कहीं तो एड अप हो रहा है। तो in the end we have to face it, even though we are not want to face it, but we have to face it. पता है वो ना, आई थिंक रिएक्शन हो गया ना, एक तरफ रिएक्शन हो गया कि औरत को इतना आपने बंद कर दिया कि अब औरत भाग रही है, she's running, she's saying I'll create my own life, I'll do what I, देखो I sit with the younger lot and girls nowadays, younger girls, right, वो कहती है हमने शादी क्या करनी, हम अपना करियर बनाएंगे, we want to become something, I'll take my own daughter who's in her teens, she says what mama शादी जरूरी तो नहीं, it's not everything, right, I'm going to make my life, I'm going to build my career, I'm going to become something in life, and if I want to I will settle. And I have nieces who have settled down in their 30s, right, so they established themselves, उन्होंने अपने आप को financially strong मजबूत किया, and then they said चलो अब ठीक है, अब मैं कर। लेकिन ये मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर चले गए हैं, ठीक है, हम पहले बहुत ज्यादा Aurat was suppressed, right? Now there is another extreme that I totally disagree with. Is the other extreme where a woman thinks that she has to prove her worth by hustling like a man. I can do everything a man can do. Well, I don't believe that. I don't need to prove myself by going and lifting. It's good if you want to do it to empower yourself. Go lift weights, go become a pilot, go become a wrestler, go become whatever you want to. But the intention, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, उससे मुझे मसला है, क्योंकि औरत को बहुत ज्यादा अब वो रिएक्शन हो गया है कि आई विल प्रूव अ मैन आई एम बेटर देन यू, आई कैन डू एवरीथिंग, यू हैव टू गो एग्जिस्ट, मैन इज नॉट योर एनिमी,
and vice versa. That's a wounded part of you who's speaking, right? Yes, men have done damage. Yes, men are bad, but don't let's not box and put every man in that category, you know. True. और मुझे मुझे ये भी है क्योंकि अब आप दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहे हो, और ये जो बिटर औरतें होती हैं ये तो खास तौर पे बिकॉज दे कुडंट स्टैंड अप फॉर, एंड आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट सेइंग because you're in a space where you can't voice yourself, you become bitter, you become resentful, and then that's how you pass down the cycle. That's why you tell your daughters, chup kar jao, शादी चलाओ, ऐसे ही होता है, मैंने भी ऐसे किया था, I had way worse than you did. Yes. Sarish, मैं भी sorry. आई थिंक द फोकस हम हमेशा जो है ना औरत को लेते हैं. जब पहले हम कर रहे थे तब भी औरत वाज द फोकस कि तुम ये मत करो, slow down, lower your standards, keep quiet, don't shine that brightly, no one's going to accept you, don't have to Yeah. do this, don't do this, don't do that. ये अलाउ, औरत पे फोकस. अभी भी जो हम कह रहे हैं कि औरत खराब हो गई, वो इंडिपेंडेंट हो गई, वो पैसा कमा रही है, वो where is the focus on men? Raise them नहीं equally. जब औरत हम क्यों ना equality पैसा की कमाए, बात, उसमें बुरी बात तो नहीं है कि औरत पैसा कमा रही है, औरत इज डूइंग व्हाट शी वांट्स टू, शी इज लिविंग हाँ, हर ड्रीम, व्हाई नॉट? मैं जब नेदरलैंड्स आई और मुझे कहती थी यहाँ पे बहुत ज्यादा इक्वालिटी, मैन ऑल्सो डू वर्क, और उस तरीके से भी यहाँ या के अपनी प्रोस एंड कॉन्स है. इधर भी women are, when they talk about it, ऑब्वियसली. वो भी बात करती हैं हाँ. like over that friend. It's not that कि यहाँ पे, लेकिन मैं कहती where is the difference lie? Difference इस तरीके से है कि देखो जब they do not वो एक, जब दे आर रेजिंग किड्स, लाइक दे रेजिंग किड्स, वो फर्क नहीं करते कि वो बेटा रेज करें या बेटी रेज करें, इक्वली करते हैं. बोथ द किड्स नीड टू बी इंडिपेंडेंट, बोथ द किड्स नीड टू डू द चोर्स, बोथ द किड नीड्स टू डू. उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. देखो अल्लाह ताला ने जो चीज बताई हुई ना, दैट्स द बेस्ट थिंग. अगर हाँ, उसके अकॉर्डिंग एब्सोल्युटली. चीज होगी तब सब सही चलेगी, सोसाइटी भी चलेगी, दीन भी अच्छा होगा, दुनिया भी अच्छी होगी, दुनिया भी. या. योर लाइफ विल बी. एंड दैट इज अल्लाह ने रोल स्पेसिफिकली डिफाइन किए हैं. मुझे एक पर बहुत मर्द अपना रोल खेलना नहीं अगर मर्द अपना रोल प्ले नहीं करता, इफ ही इज अ फाइनेंशियल प्रोवाइडर, ही फाइनेंशियली अब्यूजेस यू, देन अ वुमन will walk out, become financially independent, and never depend on a man financially. exactly. So Then I there is think a man is not playing his role in this society, right? And I'm sorry to say, I will not hold a man, I will hold a woman, because औरत ने मर्द को शह दे दी. मुझे तो इतनी एलर्जी है कि हम कहते हैं जी मर्द है ही ऐसे, किधर से सीखा मर्द ऐसे हैं? और अगर एक औरत गलत है, एक औरत का लिबास सही नहीं है और वो सड़क पे चल रही है, राइट, एंड देन यू से ओ शी गॉट रेप बिकॉज शी आस्क्ड फॉर इट, लाइक डूड, प्लीज टेल मी दैट व्हेन यू गो टू अल्लाह, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, आपने अल्लाह को ये कहना अल्लाह क्योंकि उसका लिबास ऐसा था तो शी आस्क्ड फॉर इट. अगर आप ये अल्लाह को जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, आप प्लीज कैरी ऑन विद दिस. लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस में है कि ये मैं जवाब अल्लाह को नहीं दे सकता, why can't you hold yourself accountable? I'm just like, where are those really masculine men who will look at a woman who is behuda dressed, let's say, walking on the street, you do not look at her, you walk away, or you just give her a chadar, ये ले बहना. बट नहीं, हमने ऐसे नहीं करना. हम जस्टिफाई करते हैं मैन के बैड बिहेवियर को, हम कहते हैं कि हम मर्द ऐसे ही हैं बेटा. यू वेरी राइट ऑन दैट, स्पॉट ऑन मैविश. देखो जब अल्लाह ने एक चीज सिन रखी है ना, देयर वेरी फ्यू, मैं अपने बच्चों को ये बात बताती हूँ रेजिंग देम, तो कि देखो देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स व्हिच आर हराम. सम थिंग्स अल्लाह हैव सेड स्टे अवे फ्रॉम देम, right? It's not good for you. Other Yeah. things he have said it's a sin, right? Sin मतलब गुनाह. ग्रेट सिन, एक कुछ ग्रेट सिन की कैटेगरी में भी है Yeah. चीजें, ठीक है, कि उसकी तरफ जाना भी नहीं है आपने, यू स्टे अवे फ्रॉम दोस थिंग्स, राइट? Yeah. तो उसमें कोई वो नहीं है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सक्यूज आप नहीं देख सकते. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह को नहीं जाके कह सकते तो शी वाज ड्रेस्ड लाइक दैट, दैट एक्सक्यूज नहीं है. Two wrongs can't make a right ना, basically. एक नो राइट और रॉन्ग की भी बात नहीं है कि हम गलत. जस्टिफाई करते हैं ना इब्रा. जो पाकिस्तान में तो यही होता है ना कि जी लड़की रात को 1 बजे बाहर फेरी थी, शी आस्क्ड फॉर इट. मतलब ये पाकिस्तान, मर्दों को इस सोसाइटी में प्रोवाइडर्स एंड प्रोटेक्टर्स बनाए गए. मर्द ने औरत के लिए प्रोटेक्शन बनाई नहीं, औरत को अपनी खुद प्रोटेक्शन बनानी पड़ी है. और ये जो बात हम एक्चुअली, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड रिसेंटली एंड शी वाज टॉकिंग, एक वो मुझे टिकटॉक दिखा रही थी एक लड़की की, कुछ भी नहीं था इब्रा. उस लड़की ने नॉर्मल वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे, शी वाज कवर, ठीक है. उसने एक साइड देखी, उसने दूसरी साइड देखी, उसने स्माइल की, और उसने कहा कि ये ना लड़की, शी इज आस्किंग फॉर मेल अटेंशन. मैंने कहा व्हाई, व्हाट मेक्स यू से शी इज आस्किंग फॉर मेल? तो हमारी ना उधर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, ठीक है. वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी और मैं अपना. एंड आई सेड लिसन, गो एंड रीड इस्लाम. प्री इस्लामिक टाइम में
जो आपका जो सऊदी अरेबिया था, इट वाज डेजर्ट, इट वाज हॉट, राइट, वाज रियली हॉट एंड ड्राई, राइट, एंड द women they wore clothes where half of their chest was exposed, उनके सर पे टोपी थी, उनका दुपट्टा पीछे लटका हुआ था। तो उधर तो कोई स्टेट नहीं हुआ, किसी मर्द ने नहीं जाके औरतों को रेप करना शुरू कर दी जब वो खेतों में काम कर रही है, उस लिबास के अंदर, उस गर्मी के अंदर जाकर, और ये जस्टिफाई किया ये पहनकर ये आई है तो मैं करूंगा। उधर प्रॉपर ब्रॉथल्स थे, जो ब्रॉथल के पास जिसने जाना था जाता था, लेकिन बाकी कल्चरली दैट वाज देयर लिबास। Men knew their boundaries. Men had that self honor and self respect that they didn't cross their boundary. Nowadays men don't hold themselves at that बार के मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा कोई स्टैंडर्ड है, बस यही है। और औरत उसको और इनकरेज करती है, हाँ मर्द तो होते ही ऐसे हैं, मर्द ने तो यही करना है, मर्द का तो काम ये है। सो वी रियली नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड बी लाइक, व्हाट रोल एम आई प्लेइंग इन Exactly. दिस? As I said, कि जब when you're raising, raise them equally. या Tell them equal responsibility, equal, raise them equally in that sense. तो या हमारा शुरू से आपको मेंटल इस्लाम, पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो भी कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड है. व्हेन यू पता है, गो आउट ऑफ ऑब्वियस कल्चर है, पाकिस्तान भी. पाकिस्तान इस्लाम तो है ही नहीं, हाँ कल्चर नहीं, है, इट्स अ कल्चरल थिंग। व्हेन यू गो लोगों के लिए आउट जीते ऑफ. हैं हम, स्टेटस के लिए हाँ जीते हैं हम, लोग क्या कहेंगे के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए कहाँ जीते हैं? हाँ नहीं, एंड वी डोंट. जब when I came here, or people who could read Arabic, understand Arabic, उनको समझ आती थी कुरान की, तो वो इवन आपने अभी बीच में स्टार्ट में कहा विक्टिम माइंडसेट, हमारे यहाँ हम्म, कितना उसको ग्लोरीफाई किया जाता है विक्टिम माइंडसेट हम्म, को. इस्लाम में उसने मुझे सूरह बकरा में एक आयत है, डोंट रिमेम्बर द नंबर ऑफ द आया, बट शी गेव मी द रेफरेंस कि भाई विक्टिम माइंडसेट तो अल्लाह को सबसे ना नापसंद है. पसंद, जो- हेल्पलेसनेस क्रिएट करता है ना, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। या और तवक्कुल की कमी, यू डोंट बिलीव इन गॉड, आपका तवक्कुल कम हो जाता है विक्टिम माइंडसेट के. यू डोंट बिलीव इन द गॉड, व्हाट्स गॉड्स द डेस्टिनी ऑफ ऑल दैट्स रिटन फॉर यू, एंड गॉड, एंड या दैट बिलीव दैट गॉड्स हैज द बेस्ट ऑफ your interest in his heart when he put down your बिल्कुल, destiny. And यस, he's fair, he's very fair. अगर गम है तो खुशी, सो आपका तवक्कुल वो डिपेंड करता है. was a reference to an ayah in Surah Baqarah which talks about they were Muslims in Makkah, who decided after Hijrah to stay in Makkah. They didn't go to ठीक है, Medina ओके, because of whatever, like family, or whatever ठीक है, issue. जो भी रीजन They था, didn't ठीक do. है, So when they die, the angels come to them. I'm just giving you the gist of it, not exactly ठीक the है, समझ आ translation. गई, हाँ The हाँ, the angel asked why didn't you go? It's like हम तो मजलूम थे. It's like तुम मजलूम नहीं थे, हम पे जुल्म किया गया. Like that's the translation. But like, no, you had the choice, but you decided to stay. You were the zalim. हाँ हाँ You were the zalim. You're not Muslim. You were the zalim because you decided to stay when you had the choice. When you have a way out, you did not choose the way out. yeah, जब that's so women, beautiful. and then so to link it to this woman was giving a lecture on where I heard it. She was giving a lecture on divorce. The women who decide to stay in that relationship because of kids, because of this, or but बाद में ये वो कहें तो फिर then you are actually the zalim. You are doing You it are the injustice, guidance. injustice to yourself. And as you pointed out, God said, I am the provider. I'll take care of you. I will take care of you. That's so true. Ibra, you know something? I have to share this with you. I think शायद हमने अपने पर्सनल स्पेस में ये बात की है. But मैंने जब अपने हस्बैंड को छोड़ा, ऑब्वियसली इतना शेम था, आई वाज नॉट हियर, आई वाज इन यूएसए एट दैट टाइम. तो मेरा ना, आई रिमेम्बर दिस मोमेंट, मैं अपनी बहन के घर रह रही थी, और मैं जानमाज पे मैं इतना रोई, मुझे लिटरली लग रहा था आई कांट सी, ब्लर हो गया सब कुछ, कि मैं इतने दिनों से रो रही थी, और प्रॉब्लली उस दिन ज्यादा रो रही होंगी. और आई रिमेम्बर के जो जानमाज थी वो गीली हो गई, जानमाज के नीचे जो कारपेट था वो गीला हो गया, और मैं सजदे में थी और मैं रोती जा रही थी, और एक ही सवाल था, वाई मी, वाई मी, वाई मी. ठीक है, क्यों अल्लाह ने मेरे साथ ये किया है, मैं मेरे साथ एंड टिल डे नाउ आई बिलीव दैट गॉड, बिकॉज आई वॉज इन सजदा, गॉड पुट द वर्ड्स ऑन माई माउथ. ये मेरे लफ्ज नहीं हो सकते थे, मेरे में इतनी समझ नहीं थी, आई थिंक सो. और मैंने उसको बजाय कहने के व्हाई मी, द वर्ड चेंज एंड आई सेड, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ महविश? अगर अगर तुम्हें कोई ऑप्रेस कर रहा है तो एक दिन तुम दोनों अल्लाह के सामने खड़े होगे. अल्लाह ऑप्रेसर से सवाल करेगा और ऑप्रेस से सवाल करेगा. तुम ऑपरेशन में रह के कह रही हो अल्लाह को कि अल्लाह मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं है, यही मेरी जिंदगी है, तुम ऐसे ही हो, तो यही है
And that moment just scared me. It scared me so much. I got goosebumps, and I was like, one day I'm going to stand in front of Allah and say, हाँ लम्या आपने यही लिखा था कि मैं ये जलील होती रहूं बस क्योंकि मेरी शादी हो गई है. And that was my awakening. So जो आप बात कर रहे हो, जो कुरान की ट्रांसलेशन है, मैं बार बार अपना ये बात शेयर करती हूँ कि यार अगर आप ऑप्रेस्ड हो ना, तो अल्लाह आपसे भी पूछेगा कि आपने उस ऑप्रेशन में अपनी आवाज यूज की थी कि नहीं, and then Truth. and then वो when मतलब sorry, आप कुछ कह रहे हो. नहीं, आप बोलो, मैं फिर बाद में और कंटिन्यू. अगर आप देखो, अगर हम दीन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आप देखो कि जब इस्लाम आया कितनी लोगों ने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, उनको बांध के उनको मारा गया, और वो कुफुवन आहद कहते रहे, कुफुवन आहद कहते रहे. दे यूज देयर वॉइस, दे डिड नॉट से ओके वी सरेंडर, वी डू नॉट सरेंडर, अल्लाह है. And they left like that. So then what are we scared of? Where did we lose? और वो जो आपने बात की, पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ 95% इट्स कल्चर. लोग क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगी, मैं पैसों से कैसे, मैं how will I do the finances? Leave the how to God. Trust God. He will provide for you. At least in my case, I saw God provided in ways. इब्रा, अगर मैं सारी जिंदगी भी सजदे में रहूं ना, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं कर सकती, बिकॉज बंद थे सारे मेरे दरवाजे. And आई same कुड with सी अ me. डोर. Same with me. तुम्हें पता है पाकिस्तान से here coming here and then I didn't या know job नहीं है, कुछ नहीं है, responsibility of 3 kids या and God opens door for you, but just have that belief for you. मैं एंड फिर आई भी नो कहती इट्स हार्ड, बट लिविंग दैट लाइफ इज ऑल्सो हार्ड, नहीं? हाँ एग्जैक्टली पता है वही मैं कहती हूँ ना आफ्टर दैट लेक्चर मैंने ना मुझे आई इट रियली हिट मी एंड आई वाज सो लाइक मुझे आई वाज एनवियस इन अ वे कि यार मुझे भी अरबी इस तरह पढ़नी मुझे कुरान की या समझ आनी चाहिए आई कैन लिंक वो उसने ऐसे 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 यू नो जंपिंग फ्रॉम वन आया टू अदर दिस इज नॉट समथिंग न्यू रेड दिस लाइक बचपन से हम पढ़ रहे हैं सूरह असर की भी जिक्र किया अबाउट यू नो इफ यू आर ऑन द राइट हक बार की इस्लाम मुसलमान हुआ जो हक बार की यू नो वो करे स्टेइंग तलाक फॉर के ऊपर तो पूरी एक सूरत है, सूरत तलाक. एक नहीं सूरह निसा में तलाक है सूरत सूरह तौबा बकरा में में भी है था. सूरह तलाक है मतलब हर या जगह तलाक तलाक इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ है रिलेशंस है. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट द फैक्ट के यू नो वो जो तवक्कुल जो ट्रस्ट है मैं कहती पीपल हेयर मैं वो फिर बाद में बात करूंगी इट डज रिक्वायर अ सिस्टम एज वेल मैं और पीपल सिटिंग इन द वेस्ट स्पेशली इन द वेस्ट क्योंकि मैं अगर नीदरलैंड्स की बात कर रही हूँ आई वुड से मैं यहाँ पे जितनी लॉ प्रोटेक्ट करता है देयर यू नो देयर सो मेनी थिंग्स फॉर सिंगल वुमेन राइट तो वो प्रोटेक्शन है आई एम सो सॉरी टू से कि पाकिस्तान में ऐसा कोई अब उन्होंने किया है कितने हमारे इतने बड़े बड़े स्टार्स दूसरी शादियां करके यू नो लीव द कितने बड़े बड़े अब उन्होंने लॉ बनाया है अबाउट दूसरी शादी एंड द प्रॉपर्टी की या हाँ. 50% बट स्टिल या इन द एंड लॉ इम्प्लीमेंट करना अब तुम्हें पता लॉ होता है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती क्या कौन सफर करता है वी नो ऑल ऑफ दिस ऑलरेडी देयर और फिर अगेन विद जजमेंट ऑफ सोसाइटी लोग क्या कहेंगे एंड पीपल आर नॉट काइंड ऑल्दो उनके अपने घरों में चीजें हो रही होती है अराउंड देम उनकी अपनी बेटियां घर यू नो नेफ्यू नीसेस जो भी है उनमें उनकी दे आर नॉट काइंड व्हेन इट कम्स टू इट तो हम जब अगर बात कर रहे थे बॉडी कीप्स अ स्कोर तो वो किस तरीके से फिर हीलिंग की तरफ जाएगा जब कहाँ. जजमेंट भी है कॉन्फ्लिक्ट भी है सब कुछ है हाउ इज इट गोना हाउ हम हीलिंग बहुत आसान कर देते हीलिंग हमने वो बट हीलिंग इज अ प्रोसेस It इट्स is. नॉट अ डेस्टिनेशन It's it a is not a lifelong process. it's a lifelong process and then when we talk about generational जो चीजें हमें विरासत में मिल रही हैं then it is a healing also has to be lifelong then that means that we allow our kids with and especially our girls to be who they are we give them that space to you know own themselves show them that they're worthy of love they're worthy of you know they have value without them having to do things without And them having for to bring boys, right, but that boys can good express ways, their emotions. It doesn't make them weak. good Boys are allowed ways. to be themselves. क्योंकि देखो लड़के को भी नहीं सिखाएंगे तो फिर वही साइकिल आगे जाए. एक बेटी को नहीं पावर करना, बेटे को भी करना है कि Who know तुम्हारी equally मर्दानगी is not based on you crying. It doesn't take away your मर्दानगी. So exactly. that is so important क्योंकि
वो जैसे आपने कहा ना शुरू शुरू में, बैलेंस करना है, दोनों पे उतना ही काम करना है, दोनों को इक्वली उनके राइट्स, और अगर लड़की को एम्पावर करना है तो हमें लड़के को भी उतना ही एम्पावर करना है। Both raise equality in raising kids, how you see them as humans. या या पहले इनको या इंसानों की तो देखो ना, उनको हम कमोडिटी बना देते हैं। ये लड़का हम्म है, कमाएगा, ये हमारा हम्म सहारा बनेगा, और ये लड़की है, इसने तो घर छोड़ के जाना है। हम्म। और यू इब्रा, नो सबसे बड़ी बात है कि जो हम अभी आज तक जो हम अपने माशरे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि जी इट्स वेरी सेंसिटिव टू दीन, इज पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन। हमारे माशरे में आप पेरेंट्स के साथ ओबीडियंस, आप ओबीडियंस में चलते हो, वो सही है गलत है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। और व्हाट इस्लाम टॉक्स अबाउट इट इज टोटली डिफरेंट, लेकिन गॉड फॉरबिड हम बात कर लें, क्योंकि हमारे माशरे में तो ये है कि जो माँ बाप ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो सही है और वो ही करना है। बट इस्लाम ये नहीं सिखाता है आपको। हम मिनियंस बना रहे हैं ना महविश, हम मिनियंस बना रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने मिनियंस बनाए, हम्म पेरेंट्स ने अपने मिनियंस बनाए, और अगर हम हम्म उस साइकिल को चेंज नहीं करेंगे, हम भी अपने मिनियंस बनाएंगे। वी ऑपरेट थ्रू द सेम फियर्स और पेरेंट्स हैड, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, खराब हो बिल्कुल हाँ जाएगी बच्ची को अगर प्यार मिल गया घर में, तो हाँ वो तो स्टैंडर्ड्स हाई हो जाएंगे। अगर वी क्रिएट द पढ़ाना सेम, नहीं है ज्यादा, पढ़ाना नहीं, बढ़ाना शादी नहीं है नहीं ज्यादा, होगी, ये तो ये बात पराया सही माल है। है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये तो पराया माल है, इस पे इतना हाँ, खर्चना नहीं है। इफ वी हम्म। फॉलो द सेम मिनी, हम इंसान पैदा, हम ये भूल जाते हैं, हम अपनी कॉपीज नहीं पैदा कर रहे, हम मिनियंस नहीं बना रहे। वी जस्ट टेक दैम, दैट दे आर यार ये ह्यूमंस। अल्लाह की अमानतें हैं, ये हमारी जायदादें नहीं है, अल्लाह की अमानतें हैं। वी हैव टू रेज एग्जैक्टली। देम विद रिस्पेक्ट, गिव देम द रिस्पेक्ट वी वांट देम टू गिव अस। ये नहीं कि हम तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम तुम्हारी वालदैन है, तुम नहीं कर सकते। और आजकल के बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हाउ कैन पेरेंट्स टॉक टू अस लाइक दैट, and we can't talk like that. They are right in that space, right? I know कि इस्लाम कहता है कि उफ भी नहीं करो, ठीक है ना, and be respectful towards your parents, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि टॉक्सिक पेरेंट्स है तो किनारा कशी की इजाजत है, आपका राइट है। Put your mental well-being first, मैं भी but देखो, we can't do that in this culture. इन दिस कल्चर ये भी नहीं कर सकते हो, कितनी फोर्स मैरिजेस होती है। देखो, मैरिज इज वन थिंग जिसपे अल्लाह ताला पूछेगा आपसे, लाइक इट्स वन रिलेशनशिप जो इट्स इटर्नल, लाइक जन्ना में भी, इफ यू हैव यू बोथ एंड अप देयर, यू विल बी देयर इन द जन्ना एज वेल, यू नो Hmm. सो दिस इट्स एन इटर्नल रिलेशनशिप। तो कितना हमारे यहाँ फोर्स्ड मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट है। Hmm. तो औरतें तो डिसाइड ही भी नहीं कर सकती, कितना मतलब, दैट्स द लड़के कई रियलिटी। जगहों में नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल खामोशी से कर करना सकते हैं। पड़ता है और ना। फिर अगर वो नहीं कर सकते, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाइफ लॉन्ग वो लेंगे। दे कैन पुट Hmm. देयर हार्ट इनटू इट, दे कैन पुट देयर हार्ट इनटू, हार्ट एंड सोल इनटू दैट रिलेशनशिप। वो फिर सरफेस Hmm. लेवल पे होगा ना, एवं तो प्रॉब्लम्स नहीं रेज होती। Hmm. when you're not making the choice yourself, you're not actually working for a better, future together, and then with that expectation कि यार हमने जन्नत में इस बंदे के साथ होना है, तो Oh फिर my इमेजिन, God. सोचो, मैं लाइफ लॉन्ग की, अच्छा चलो जन्नत को ना भी लो, इफ यू नॉट रिलीजियसली ओरिएंटेड, अगर आप लाइफ लॉन्ग भी कैसे कमिट कर सकते हो व्हेन इट्स नॉट, यू नो दिल से ही नहीं आ रहा है। दिल से ही नहीं है, इट्स नॉट योर ओन हम्म चॉइस। और मर्द इतने ज्यादा देखो ना, वो आप जो बात टॉपिक है बॉडी कीप्स, बिकॉज मेन आर टॉट फ्रॉम अ वेरी यंग एज इमोशंस नहीं दिखाने, मर्द इमोशंस नहीं दिखाता, यू हैव टू बी सॉर्टेड कलेक्टेड, शो अप लाइक अ मैन। अब तो ये प्रूव हो गया कि ज्यादा मर्द हार्ट अटैक से मरते हैं, और औरतों को ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो यूट्रस में होती हैं। दैट्स द बॉडी कीप्स स्कोर, इट्स देन ऑलरेडी शोन दैट। एज आई सेड कि रिलीज कहाँ होगा, अगर रिलीज ही नहीं है, सप्रेस है ऑल द टाइम, तो वेयर इट स्टेज, इट जस्ट स्टेज इनसाइड अंटिल वो फर्मेंटेड पिकल की तरह बबल आउट नहीं हो जाता, तो इट स्टेज देयर। I was just using somebody's comment and that's so true. हमने ना जेंडर बाइसेस हो गई हैं मेरे ख्याल से। लड़के क्यों आपके घर में बेटे हैं तो लड़के क्यों टेबल से प्लेटें उठाएं, बहनें उठाएं। लड़का हाँ, बैठा है आराम से, चौड़ के बैठे, चाहे वो घर का छोटा है और बहनें बड़ी हैं, ठीक है ना। नहीं, ट्रू लड़के दैट। से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, अपना कमरा साफ करो बेटा। बच्चे तो लड़के तो होते ही मैसी हैं, लड़की का कमरा गंदा है तो शादी नहीं होगी तुम्हारी, कैसे बस होगी ससुराल में जाकर। Maybe that's a disservice to the boys. सोचो कितने बच्चे इट हमारे इज। आते हैं बाहर पढ़ने, जब आते हैं पाकिस्तान से, जब पढ़ने आते हैं, उनको यार कुछ करना नहीं आ रहा होता, उनसे दे कांट लिव।
जो पीपल फ्रॉम, उनसे पढ़ाई क्या होगा, उनसे तो रहना नहीं चाहा होता, वो कभी क्या कर रहे होते, कभी पीपल कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो बहुत रिच है, वो तो मिडिल, जो पीपल कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने स्ट्रगल की होती है, उन्होंने चला। जो अपर मिडिल क्लास से जो लोग आते हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने सर्वाइव कैसे करना है, ग्रोसरी कैसे करनी है, खाना कैसे बनाना है, लाइक इट्स अ डिससर्विस टू देम। मैं Yeah, यहाँ पे मैं कहती हूँ ना, एक तो चलो इनका पासपोर्ट स्ट्रांग होता है, दे कैन गो एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड एंड लिव, राइट? yeah, yeah. They can literally, they can just pick up a bag and go anywhere and survive. Yeah. Why? Because they are like, उनको किसी की जरूरत नहीं है, तो अपने चोर्स खुद कर सकते हैं, अपना ख्याल खुद कर तो लाइफ स्किल है, व्हेन वी सेइंग कि खाना बनाना या व्हाट, इट्स योर लाइफ स्किल। इट्स अ डिससर्विस टू द मेन, आई थिंक, टू द बॉयज, व्हेन यू नॉट टीचिंग देम दोस इंटीग्रल। मैं कहती हूँ हर किसी के लिए, विदाउट एनी, ये हर किसी के लिए जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल. You're not truly independent unless you can, Facilitate function that. as an Yeah, independent person, whether you're a boy or a girl. true, अगर true. अपना ख्याल नहीं कर सकते आप, सही सारा बात. कुछ तो दिया। Yeah. पर, अच्छा इब्रा, हमने इतनी बातें की, हमने अभी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी हुए, बट वी रियली एक्सपैंडेड आवर कन्वर्सेशन. I don't want to just close it like that because we touch at so many levels. थोड़ी सी बात करते हैं solutions की तरफ. Let's talk about solutions. How can we change and better ourselves and have healthy outcomes? okay, I'll break it down in 2 steps. हमने इसमें थोड़ा थोड़ा हमने बात की बीच में। हाँ. सबसे पहले तो अवेयरनेस आती है, बट अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस आती है। यू कांट चूज टू इग्नोर दीज थिंग्स। एक्सेप्टेंस आती है, इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल टू एक्सेप्ट, हाँ यार मैं ही शायद जो चीज करी हूँ वो गलत है। गलत है. Awareness, acceptance, then comes the time to action, and that does not action with the thought कि यार I have to change it, not just for myself but for my future generations. I have to change this thing. वो change एक दिन में नहीं, as I said कि healing is a process, it's not a destination, it's a journey. Yeah. Right? So it has to have, हमें aware, we have to be, to make that change we have to be aware of our or bad patterns. We have to make that change by releasing it. If we keep, अगर जो अंदर already stored है, right, अंदर सब चीजें stored है, if we do not release it adequately, we won't be able to change. Even though we can change it, अगर वो released energy है, वो कहीं ना कहीं, अगर suppressed energy है, वो कहीं ना कहीं through anger, through unhealthy expression of anger या anything else, वो नजर आएगी लाइफ की किसी पॉइंट में आए। जब आपको कहते हैं, अब अक्सर लोग कहते हैं अब मैं क्यों एंग्री हो रहा हूं, जब आपको चांस मिलता है वो एंगर फील करने का, तब आप एंगर फील करते हो ना, और फिर वो रिलीज होता है। एंड इफ यू डू नॉट रिलीज इट इन अ हेल्दी वे, इट विल बी रिलीज इन अ अनहेल्दी वे। आई गिव द एग्जांपल ऑफ अ फर्मेंटेड पिकल, राइट? अगर वो फर्मेंटेड पिकल आप नहीं करते, वो सप्रेस्ड एनर्जी आप नहीं टाइमली निकालते, इट कैन बर्स्ट, राइट? इट कैन कॉज एन एक्सप्लोजन एज वेल। तो आपको रिलीज लाजमी करना है, रिलीज करना है, फिर हेल्दी चेंज लेकर आना है। चेंज भी आपने लेकर आना है कि यू ऑलवेज फॉल बैक टू योर ओल्ड पैटर्न्स, बट गिव योर विद कंपैशन आपने करना है उसको, दैट इट्स ओके टू फॉल बैक इनटू द ओल्ड पैटर्न, बट my goal is not to change in one day or one mind. It might take generations, as I said, generations लग सकती हैं, but I will be the change I want to see. I will be that change. सो कांस्टेंट आपने अपने आप को इवॉल्व करना है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रहना है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस में रहना है, कंपैशन के साथ हील करना है, एंड देन चेंजिंग एंड ट्राइंग टू जितने भी हम ये कदे, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी इमोशन नेगेटिव नहीं है। इफ यू एंगर इज नॉट नेगेटिव, सैडनेस इज नॉट नेगेटिव, नथिंग, वी हैव टू डू इट इन अ हेल्दी मैनर। तो चाहे किसी तरीके से भी रिलीज देयर, as I said, there's limited work on longitudinal works on releasing the trauma, because as I said, it is generational. But still there are modalities which can help you release all of that, right? These are you can go to somatic work, through vagus nerve therapy, through और भी बहुत सारी है, हिप्नोथेरेपी है, और भी बहुत सारी है, बट एक्चुअली कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ। सो अगर मैं 3 वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करूं कैसे, अवेयरनेस, रिलीज
and third is healing, Mhm. right? So then you heal with going through all those stages. And like मैंने तीन चीजें बताई हैं, but there is a, as I said, it's a अभी process. हाँ हाँ हाँ, There's it's a lot very, of steps it's to more it. ridiculous. हाँ हाँ, हाँ healing as itself, healing ऐसे नहीं हो जाती. Healing के लिए आपको, you have to go through, and healing और is not हीलिंग का एक दिन में you इब्रा turn a new leaf. नहीं नहीं, और हीलिंग का ये I truly like I believe this that healing cannot happen in a place that damage you. You have to remove yourself from it. क्योंकि आप अपने आप को हील करोगे, वो नया ट्रॉमा आ जाएगा उस अंदर, फिर उसको हील कर तो वो एक और एक साइकिल बन जाती है. एंड सो ट्रूली विल रैप इट ऑन दिस कि सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करो, ठीक है. बंद दिमाग नहीं रखो. हमारे कल्चर बहुत बंद दिमाग है कि अच्छा हमारे परदादों ने किया ये सही है. क्वेश्चन करो. You don't have to change everything, but question karo, yaar, this is what my grandfather was doing. Do I need to do this? Does it work in now? Does it work for me? If it doesn't, let it go. It's okay, right? So I think educate yourself, bring awareness around it, get your knowledge. Just don't scroll on social media and self validate. हाँ मेरे साथ यही हो रहा है, देखो ना ये अब मुझे समझ है मेरे साथ ये हो रहा है. एंड देन स्क्रोल, और फिर रात को फोन रखा सोए और वही साइकिल रिपीट कर दी बार बार. बस एक डोपामीन हाई मिल रहा है क्योंकि लोग नहीं आपको वैलिडेट करे. सोशल मीडिया कर रहा है, हम कर रहे हैं स्पेस में. तो this is not helping you. You have to own it with awareness. You have to own it with, like you said, acceptance. And then you have to own it. I have to heal and I have to change something within me to get a different result. This is Exactly. not working for me. And that's where I think a lot of us are losing it. There is so much of knowledge and information, and we are getting so addicted to self validating ourselves. Self validation is not healing. It's going to still, you're still in the same place, in the same environment. So please, guys, I hope we're not being too hard. We are here to hold space for you. We are here. I know it's hard. Whatever decisions you make is respected in this space, but we are just here to educate you and upgrade you that there is a life on the other end, and we both are an example of doing that. Yes, Ibra, you're going to say something and then we'll wrap it up. I just want to say thank you so much for bringing me here and making talk on this topic. It's something really Yes, close to my heart, and yeah, and as I said, healing. I hope to see more people, in this journey, and we can do it together. It might Ish. take, generations, but let's doing it together is what makes it easier. Sharing that load makes it easier. So Yes. let's hold each other's hand and be in this journey together. Yeah, Thank you so you're much not for alone. listening. Yeah, yeah, Yeah. absolutely. You're not alone. You don't need to be alone. Reach out, connect. We are here to hold space for you. इब्रा, किसी ने आपसे कनेक्ट करना है, आपके साथ रीच आउट करना है, कैसे करें? प्लीज बता दे मेरे uh, ऑडियंस को. there's through my link. They can DM me always, Okay. and yeah, and hopefully we'll be able to do this regularly. So and Inshallah. yeah, Guys, our plan is to meet every Sunday regularly, and then you can send us DMs on topics that you would like us to educate you about, inform you about, and we will take it from there. Ibra, have a wonderful rest of your Sunday. I'm sending you so much love. Take care of yourself. thank you so much. Take care, darling. Bye bye. Hafiz. Hafiz.